Hello friends, welcome to the third part of the topic analysis of a continuous beam, where in my previous lecture we saw Clapeyron's theorem. मतलब Clapeyron's theorem के ऊपर हमने कुछ introductory part देखा था, and in this lecture we'll be solving an example based on the same theorem. उसी theorem के यूज करके हम एक example solve करेंगे जहाँ पे हम आज ये beam analyze करेंगे. Let me remove the values right now what I've placed. So as you can see, this is a two span continuous beam. तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, by using the Clapeyron's theorem, this is having two pair of spans, that is AB and BC. So this becomes one equation. तो अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर मेरा देखा है तो आप लोगों को मालूम होगा कि एक पेयर एक इक्वेशन देता है. तो दिस इज माय इक्वेशन, दिस वन, MAL1 plus 2MBL1 plus L2 plus MCL2 will be equal to minus 6A1x1 upon L1 minus 6A2x2 upon L2. This is one equation. और अगर यहाँ पे तीन स्पान रहते तो दो इक्वेशन रहते, क्योंकि यहाँ पे टू पेयर ऑफ स्पान रहते, ABBC एक हो गया और BCCD दूसरा हो गया. But right now we are having only two spans and this therefore we'll be using only one equation. तो ये इक्वेशन हम सॉल्व करके shear force और bending moment diagram ड्रॉ करेंगे for this particular beam. And regarding this beam, it is having two spans with 6 meter, 3 meter and 3 meter. So both the spans are having equal length, that is 6 meter and 6 meter, because this is the midpoint. ये point load जो है वो midpoint पे place किया गया है, and this uniformly distributed load is on the entire AB span, and that is 12 kilonewton per meter. Now we'll solve this equation. We'll continue with this equation, that is Clapeyron's theorem. ये Clapeyron's theorem का equation है. तो सबसे पहले हम ये वाला जो पार्ट है हमारा -6A1x1 upon L1 -6A2x2 upon L2, इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो -6A1x1 upon L1 दैट विल बी इक्वल टू -6 into A1. तो जैसा कि मैंने बताया था, A1 क्या है, ये फर्स्ट स्पान जो है AB, उसका म्यू डायग्राम, मतलब बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम बनता है, इसको सिंपली सपोर्टेड बीम एज्यूम करके, तो इस डायग्राम को हम म्यू डायग्राम बोलते हैं. So here if we consider this uniformly distributed load, then we can have the formula WL square by 8 as I have written over here. W is 12, L is 6 and divided by 8. तो हमारी वैल्यू बनेगी 54. और क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो यहाँ पे जो डायग्राम आएगा वो कर्व्ड होगा. बट इफ वी आर हैविंग दिस पॉइंट लोड तो हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, ट्रायंगुलर. सो we'll have to calculate the area accordingly, we'll have to use the formula accordingly. और यहाँ पे पॉइंट लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आती है उसका कैलकुलेशन WL/4, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं और उसका फॉर्मूला है ये WL/4. दिस इज ऑल्सो 54 एंड यहाँ पे भी हमें 54 मिल रहा है. बट वी आर नॉट हैविंग द वैल्यू ओवर हियर, दिस MB. और जैसा कि आप लोगों ने फिक्स बीम वाले मॉड्यूल में देखा था, इसे म्यू डैश डायग्राम बोलते हैं. But we'll come back here later on. Right now we'll solve this. तो A1 मतलब this mu1 diagrams area. तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 2/3 into base into altitude. कोई भी कर्व्ड शेप का फॉर्मूला है 2/3 into base into altitude. और अगर हम ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं then it would be 1/2 into base into height. यहाँ पे क्या आएगा, 2/3 into base into height. So this is what I have written here. 2/3 into base क्या है, 6 meter, and what is height, that is 54. This is the height of this particular area. So 2/3 into 6 into 54 into x1. x1 मतलब पॉइंट A से यहाँ इसके सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था. ये सेंटर का डिस्टेंस हो गया इसका एग्जैक्टली हाफ, दैट इज 3 मीटर. तो आई मेंशनड इट ओवर हियर. दिस x1 is 3. 6 -6 into 2/3 into 6 into 54 into 3 divided by 6. ये L1 मतलब फर्स्ट स्पान की लेंथ इन मीटर. तो देखिए ये हमें ध्यान रखना है कि हम जो लेंथ यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो उसका यूनिट मीटर में रखना है हमें. एंड सिमिलरली जो लोडिंग का यूनिट हम यूज कर रहे हैं उसे किलोन्यूटन में ही रखना है. इट इज द SI यूनिट. एंड सिमिलरली we'll find the value for this -6A2x2 upon L2. So this is what I have written it over here. -6A2 जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड.
हाफ इंटू बेस क्या है 6 मीटर इंटू एल्टीट्यूड हो गया 54. दिस इज द पीक वैल्यू, दैट इज अल्टीट्यूड. और हाइट भी बोल सकते हैं. डिवाइडेड बाय 6, that will be equal to -486 and this value we got -648. तो इस तरह से हमने ये दोनों इक्वेशन की वैल्यू कैलकुलेट करके डायरेक्टली प्लेस कर दी है यहाँ पे. So now after calculating the values of the right hand side of this equation, we'll move on towards the left hand side of this equation. मतलब ये वाला जो पार्ट है उसकी वैल्यू हम अब कैलकुलेट करेंगे. But at first I'll remove these unnecessary things. So now as we know कोई भी continuous beam में end supports अगर simply supported या फिर hinge support है, then it will not carry any resisting moment. It will not be able to resist any moment. यहाँ पे कोई resisting moment नहीं आएगी पॉइंट A और पॉइंट C पे. मतलब MA और MC हम डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं. तो इस इक्वेशन में जहां पे भी MA और MC मेंशन्ड है वहां पे हम डायरेक्टली जीरो कर देंगे और 2MB L1 plus L2 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. So what we are having is we are having the right hand side of this equation, but we don't have this 2MB L1 plus L2 because we are not having MB. See, our task is to calculate MB क्योंकि MA और MC की वैल्यू हमें मालूम है, but what we need to calculate is the value of this MB. मतलब इंटरमीडिएट सपोर्ट पे जो भी मोमेंट रेजिस्ट होगी उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. 0 plus 2MB into 12. तो ये L1 plus L2 मतलब 6 plus 3 plus 3 that will be equal to 12. 2MB into 12 is equal to -648 minus 486. This both equation and the left hand side we have 2MB into 12. This many things are remaining. तो यहाँ पे हम MB को सब्जेक्ट बना करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं -47.25. और क्योंकि ये मोमेंट हमने कैलकुलेट की इसका यूनिट क्या रहेगा किलो न्यूटन इंटू मीटर. सो दिस वाज आवर फर्स्ट टास्क. हमारा फर्स्ट टास्क था कैलकुलेटिंग बेंडिंग मोमेंट एट ऑन द इंटरमीडिएट सपोर्ट, दैट इज MB. सो नाउ we'll move towards the calculation of the shear force part, but before that we'll be drawing this diagram. ये डायग्राम हम कंप्लीट कर देंगे क्योंकि हमने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर ली है. तो यहाँ पे हम MB मतलब म्यू डैश डायग्राम की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है यहाँ पे हम -47.25 किलो न्यूटन मीटर. ओके, वी डोंट नीड टू मेंशन द यूनिट ओवर हियर. यहाँ पे यूनिट मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. एंड इवन यहाँ पे साइन भी हमें नहीं दिखानी है क्योंकि हमें मालूम है ये ऑलरेडी हमने ये जो डायग्राम यहाँ पे म्यू डैश डायग्राम दिखाया है वो इन्वर्टेड है, इस तरह से मिरर हो गया है. देन इट विल बी नेगेटिव 47.25. तो एक बार हमने ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर दिया, उसके बाद हमारा टास्क रहेगा टू ड्रॉ दिस शियर फोर्स डायग्राम. सो विल बी मूविंग टुवर्ड्स दिस डायग्राम. और ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शंस. सपोर्ट रिएक्शन हमें चाहिए. तो इसके लिए हमने कैलकुलेशन यहाँ पे किया है, कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स. तो यहाँ पे दोनों बीम मैंने सेपरेट करके प्लेस कर दिए हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम्स एज्यूम करके. तो RA, RB1, RB2 and RC, these are the reactions what I have divided. RB को मतलब रिएक्शन एट पॉइंट B मैंने डिवाइड कर दिया है दो पार्ट्स में, RB1 and RB2 as mentioned over here, this and this. और रिएक्शन एट पॉइंट A is RA and रिएक्शन एट पॉइंट C is RC. तो रिएक्शंस एब्रीविएट करने के बाद मैंने यहाँ पे लोडिंग दिखा दिया 12 किलोन्यूटन पर मीटर ऑन द फर्स्ट स्पान एंड ऑन द सेकंड स्पान I have 36 किलोन्यूटन at the midpoint. Then I have written the length 6 meter, 3 meter and 3 meter. And after that मैंने क्या किया है, MA और MC की वैल्यू सबसे पहले तो यहाँ पे 0 दिखा दी एंड लॉजिक यूज करके मैंने MB की जो वैल्यू फाइंड की है 47.25 वो मैंने लॉजिक यूज करके ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे दिखा दिया है क्योंकि हमें मालूम है दिस इज रेजिस्टिंग मोमेंट और ये लोड क्लॉकवाइज अगर हम ड्रॉ करेंगे ये मोमेंट तभी रेजिस्ट हो पाएगा. एंड सिमिलरली ओवर हियर यहाँ पे अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करूंगा तभी ये 36 किलो न्यूटन वाली जो मोमेंट है वो रेजिस्ट हो पाएगी. तो बेसिकली आई हैव नॉट यूज्ड एनी साइन कन्वेंशन ओवर हियर, बट व्हाट आई हैव यूज्ड इज दिस 47.25 जो वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लॉजिकली यूज कर दिया है. सो नाउ एट फर्स्ट वी विल एनालाइज दिस पार्ट. ये वाला जो बीम का पोर्शन है उसे हम एनालाइज करेंगे.
बाय टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। ए पॉइंट पे हम मोमेंट 0 लेके कैलकुलेशन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो मैं ये मोमेंट यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ फॉर द कैलकुलेशन, क्योंकि हमें मालूम है बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पर यहाँ पे क्या है कि क्योंकि ये ऑलरेडी एक मोमेंट है तो इसमें डिस्टेंस नहीं आएगा, तो डायरेक्टली प्लेस कर देता हूँ 47.25। यहाँ पे देखिए मैंने माइनस 47.25 लिखा है, ये माइनस कहाँ से आया। सो नाउ द कंफ्यूजन इज वेदर वी शुड ड्रॉ दिस नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन। तो जैसा कि मैंने ये साइन कन्वेंशन दिखाया है यहाँ पे, हर बार हम सभी न्यूमेरिकल्स में यही फॉलो करेंगे। अगर सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव रहेगी, एंड इफ वी आर कैलकुलेटिंग ऑन द राइट हैंड साइड तो क्लॉकवाइज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहेंगी वैल्यू। तो वी आर कैलकुलेटिंग दिस ऑन द राइट हैंड साइड। देखिए ये जो मोमेंट दिखा है वो सेक्शन के राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड और क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव है। सो आई हैव रिटन हियर नेगेटिव minus 47.25. Now it is not having distance because it is already moment. फिर 12 into 6 into 3 यहाँ पे मैंने दिखाया इट इज क्लॉकवाइज। -12 into 6 into 3 कहाँ से आया, फोर्स -12 6 मीटर लेंथ पे लग रहा है, तो 12 into 6 हो गया लोड और 3 हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट द सेंटर। और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है एट द पॉइंट ए से क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो कैलकुलेटिंग ऑन द राइट हैंड साइड एंड क्लॉकवाइज इट इज नेगेटिव। तो अगेन आई रिटन -12 into 6 into 3 नेगेटिव। और बचा है ये RB1 ये बचा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है फ्रॉम पॉइंट ए। तो RB1 into 6 बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द वैल्यू, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो RB1 into 6 ये हो जाएगा पॉजिटिव बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग ऑन द राइट हैंड साइड और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया पॉजिटिव। बाय मेकिंग दिस RB1 सब्जेक्ट हमें जो वैल्यू मिली है वो है 43.875। तो ये RB1 में मैं 43.175 लिख देता हूं एंड द रिमेनिंग इज RA। तो टोटल लोड में से अगर मैं 43.175 माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा RA, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर। टोटल लोड माइनस RB1 दैट इज 28.125। टोटल लोड क्या रहेगा 12 into 6। तो इस तरह से मुझे RA की वैल्यू भी मिल गई दैट इज 28.125। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 28.125। तो आई एम मेंशनिंग इट ओवर हियर आल्सो 28.125। देन आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ RB1। RB1 की वैल्यू क्या है, सॉरी दिस 43.875, तो ये भी लिख देता हूँ 43.175। So I am writing the value of this over here. RB1 is 43.875 plus RB2 भी हम ऐड करेंगे यहाँ पे, we will also add the value of RB2. So now we'll move on towards the calculation of the second span. तो यहाँ पे RB2 और ये RC मैंने दिखाया है, taking moment at point B is equal to 0, point B यहाँ पे moment कैलकुलेट कर रहे हैं and we are moving towards right hand side। पर ये जो moment है वो left hand side है, तो लेफ्ट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज, दिस लेफ्ट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो -47.25 नेगेटिव है। एंड नाउ विल मूव टू राइट हैंड साइड। तो ये सेक्शन से राइट हैंड साइड देखेंगे तो 36 into 3 ये क्लॉकवाइज है, तो ये सेक्शन से राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव आएगा। सी आई हैव मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। एंड 36 into 3 दिस इज कंप्लीटेड एंड नाउ विल टॉक अबाउट दिस RC। तो RC विल मूव अराउंड पॉइंट B। This RC into 6 is the perpendicular distance। तो सेक्शन से राइट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज, सेक्शन से राइट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे भी मिस्टेक की थी प्लस। सो नाउ बाय मेकिंग दिस RC सब्जेक्ट मुझे वैल्यू मिलेगी 25.875। तो यहाँ पे भी एक मिस्टेक है मेरी, RC की वैल्यू मुझे मिलेगी 25.875। ये RC की वैल्यू हो गई 25.875। नाउ आई विल कैलकुलेट द वैल्यू फॉर RB2। RB2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल लोड माइनस RC।
मतलब 36 minus 25.875 that will be equal to RB 10.125 kilonewton. This is RB2. So now I'll write the value of RB2 over here. RB2 की वैल्यू है 10.125. 10.125 यहाँ पे लिख देता हूँ तो टोटल हो जाएगा 43.875 प्लस 10.125 तो ये हो जाएगा 54 और ये आरसी की वैल्यू 25.875. So this becomes the reaction at point A, B and C. So based on this value I'll be drawing this shear force diagram क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की थी तो it is obvious that यहाँ पे भी वो carry out होगी. So now this 28.125 will move towards here. 28.125 minus 12 into 6. So 28.125 minus 12 into 6 क्या रहेगा 43.875. क्योंकि ये नेगेटिव है तो नीचे आएगा. एंड 43.8 माइनस 43.875 प्लस 54 ये हो जाएगा 10.125. तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 10.125. देन यहाँ पे कोई लोड नहीं है तो हॉरिजॉन्टल जाएगा 10.125. देन माइनस 36 तो माइनस 36 आंसर आएगा माइनस 25.875. अगेन यह नेगेटिव दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि ये ऑलरेडी डाउन है. 25.875 प्लस 25.75 जीरो हो गया. दिस इज आवर shear force diagram. So friends, in this way by using the Clapeyron's theorem हमने bending moment और shear force diagram draw किया है. So that is all for today and thank you for watching.